हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नीम राज लाइन बाय लाइन सीरीज। आज की वीडियो में हम जनरल एग्रीकल्चर का यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों एक साथ कवर करने वाले हैं। सिंस इस यूनिट में डायरेक्ट फैक्चुअल टर्म्स हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाने जैसा नहीं है, तो हम इसे बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। सो यूनिट 2, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स। एग्रीकल्चर इज अ लैटिन वर्ड taken from agar, which means soil, and cultura means cultivation. The meaning of agriculture is cultivation of soil. Similarly, agronomy is a Greek word. Agros means field and nomus means manage. Horticulture, Latin word. Hortus meaning garden and cultura meaning culture or growing. Pomology, Latin and Greek word. We remember pomology is a Latin and Greek word. Combination of Latin word pomum meaning fruit and Greek word logos meaning discourse. Olericulture is a Latin word. Oleris meaning pot, herb, and English word culture, which means cultivation. Floriculture is a Latin word. Floris meaning flower, concerned with cultivation of flowering and ornamental plants. Floriculture में mainly cultivation किया जाता है flowering and ornamental plants का. Extension, it is a Latin word which is derived from two words ex and tentio. Ex means out, tentio meaning to stretching. Meaning of extension, to stretch out the knowledge. Soil. Soil is a Latin word. Solum means ground or floor of earth crust. Monsoon, it is an Arabic word. Museum meaning change of season. Biodynamics is a Greek word. Bios means life and dynamic means energy. Truck gardening, French word truck. Turkir meaning to barter or exchange of goods. Nematode is a Greek word. Nema meaning thread and toid means form. Pedology, it is a Greek word. Pedon meaning soil or earth. Edaphology, Greek word edaphos, meaning influence soil for plant growth, and logos means study or discuss. Market is a Latin word which is derived from marketus. Marketus meaning place of trade, traffic, or merchandise. Evaluation is a Latin word taken from evaluatio, meaning unrolling or rolling out. Enzyme, it is a Greek word, en meaning in, and zyme means fermented or living. Credit, it is a Latin word derived from credo, which means I trust you. Legume, it is a Latin word derived from legumine, which means bean. Pulses, it is a Latin word derived from pulses, means protein-rich edible grains. Cereals is a Roman word taken from Ceres, means goddess of grain or agriculture. Sugarcane, taken from Sanskrit word sarkara or sakar, meaning sugar. Cotton is a Sanskrit word karpasa, meaning cotton tree. Groundnut is a Greek word arachi, means groundnut. Rabi, Kharif, and Zad. These are Arabic words. Society is a Latin word, societas, which was derived from noun socius, meaning comrade and friendly. Vulgarization is a French word, which is derived from vulgarize, meaning popularize. Cell, it is a Latin word, which is derived from cella, meaning a small group acting as a unit within a larger organization. In vivo and in vitro, it is a Latin word. In vivo means within the living, and in vitro meaning within the glass or laboratory. Plastic, it is a Greek word derived from plasticus, meaning formed or moduled. Ecology is a Greek word derived from oikos, meaning house, dwelling place, and logos, meaning study. Entomology is a Greek word which is derived from entomon, which means insect, means cut into section, and logos, meaning discourse. Arthropoda is a Greek word which is derived from arthros, meaning segmented, and podos, meaning leg. Phytopathology, Greek word phyton, that means plant. Pathos means alignment, or logos, meaning knowledge. Fungicide is a Latin word fungus, meaning fungi, and kaido, meaning to kill. जो fungi को kill करता है, that is fungicide. Side is a root word which means to kill. Meteorology, Greek word meteoros, meaning above the earth's surface, atmosphere, or logy, meaning indicating signs. Climate is a Greek word which is derived from kalima, means weather condition of a regime. Sociology, the Greek, Latin and Greek word. Latin word socius means companion, and Greek word logos means speech. Economics is a Greek word which is derived from oikonomikos, with oikos means household and nomos means management. Psychology is a Greek word. Psyche means soul and logos means study. Communication, it is a Latin word derived from communis, which means common. Entrepreneur, French word derived from entrepreneur. Manure, French word derived from manure, manure means work with soil. Here it is related to agriculture. Cultivation of maize. मैंने मार्क किया हुआ है रेड पेन से. Cultivation of maize 4400 BC before Christ. Cultivation of rice 4000 BC. Cultivation of potato 3500 BC. Cultivation of finger millet देख लीजिएगा. Sorghum. Cultivation of sugarcane and irrigation through wells started 1500 BC. Moving to the next.
15th सेंचुरी में कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज एंड वाइल्ड ब्रिंजल पोमेग्रेनेट, इसको आप याद कर सकते हो। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में 1550 एडी में पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था ग्राफ्टिंग टेक्निक हॉर्टिकल्चर में। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। 1845 में आयरिश फेमाइन आया था ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। कॉन्सेप्चुअल इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर दें तो आयरिश पोटैटो फेमाइन की वजह से आयरलैंड की आधी से ज़्यादा आबादी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन भुखमरी की वजह से खत्म हो गई थी और लाखों लोगों को कंट्री छोड़नी पड़ी थी। इसका मेन रीज़न ये था कि आयरलैंड की 33% पॉपुलेशन कम्प्लीटली पोटैटो पर डिपेंडेंट थी और मोनोजेनिक प्लांटेशन होने की वजह से लेट ब्लाइट डिसीज पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया था। सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप। फेमाइन इज बंगाल एंड उड़ीसा, 15 लाख पीपल की डेथ हो गई थी। अकरेंस ऑफ सीवियर फेमाइन 1868-69। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर के हिस्टोरिकल इवेंट देखते हैं तो 1871 में जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स DRAC का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1874 में एक सीवियर फेमाइन आया था बिहार में। ये फेमाइन रेनफॉल फेलियर के कारण हुआ था और 1865 बंगाल फेमाइन के मुकाबले इसमें रिलीफ मेजर टाइम पर एग्जीक्यूट हुए थे। गवर्नमेंट ने बर्मा से राइस इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया जिससे मास मोर्टेलिटी को रोका गया। ओके दैट्स इट। 1875 में इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ था जिसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में था। देन उसको शिमला में शिफ्ट किया गया 1905 में। देन 1928 में इसको पुणे में शिफ्ट किया गया। लेटर ऑन दिल्ली में 1944 में इसको फाइनली शिफ्ट कर दिया गया। 1876 में फेमाइन मद्रास इन बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। फेमाइन कमीशन अपॉइंट किया गया था 1880 में। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। स्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून 1906 1906 में। एग्रीकल्चर कॉलेजेस को स्टैब्लिश किया गया था 1901 से लेकर 5 तक पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, लैलापुर और एंड कोयम्बटूर। 1901 में अपॉइंट किया गया था फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। देन सम प्रोजेक्ट्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट। गुड़गांव प्रोजेक्ट जो कि FL ब्राइनी के द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट था। श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर, मारथंडम प्रोजेक्ट बाय स्पेंसर हैच एंड सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी। ओके सो ऑल दीज आर रूरल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था FL ब्राइनी के द्वारा गुड़गांव हरियाणा में। इसका मेन एम था फर्स्ट रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ये एक फर्स्ट रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम था जो कि विलेज गाइड या विलेज लेवल वर्कर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट जो था 1921 में स्टार्ट किया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट सुरुल, श्रीनिकेतन, वेस्ट बंगाल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रूरल पीपल में, रूरल गांव के लोगों में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता लाना और यूथ क्लब के थ्रू ट्रेंड करना। मारथंडम प्रोजेक्ट 1921 स्टार्टेड बाय डॉक्टर स्पेंसर हैच इन मारथंडम, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ये यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन द्वारा लॉन्च हुआ था और इसका फोकस सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प पर था। सेवाग्राम प्रोजेक्ट 1921 स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एट वर्धा, महाराष्ट्र। ये खादी विलेज इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट पर फोकस था ताकि ग्राम स्वराज्य का सपना पूरा हो सके। नेक्स्ट 1931 में इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी लाई गई। 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी लाई गई। 1940 में इंडियन फार्मिंग जो कि ICAR के द्वारा पब्लिश की जाती है वो मंथली मैगजीन को स्टार्ट किया गया। ग्रेट बंगाल फेमाइन कॉज बाय हेलमिंथियस प्लूरियोमोराइजी जो कि 1943 में हुआ था। इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी 1944 में लाई गई। इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी 1945 में एक और कमेटी लाई गई, सेंट्रल टोबैको कमेटी। 1946 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टैब्लिशमेंट किया गया जिसका नाम बदल के अब NRRI कर दिया गया है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक ओडिशा में है। 1946-47 में फिर का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया मद्रास में जो कि स्टार्ट किया गया था T प्रकाशन एंड D थारूगढ़। 1947 इंडियन सेंट्रल ऑयलसीड कमेटी। जनवरी 1948 गेट लाया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस किया। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट लाया गया बाय अल्बर्ट मेयर। 2 अक्टूबर 1959 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 2 अक्टूबर 1953 स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। 1957 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 3-tier system on the recommendation of Balwant Rai Mehta, inaugurated by Jawaharlal Nehru on 2 October 1959 in Nagpur district of Rajasthan. Okay, so next 1960
स्टैब्लिशमेंट हुआ था फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इंडिया में, जो कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी थी, पंतनगर, ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ यूएसए। 1960-61 इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया, इट इज नोन एज पैकेज प्रोग्राम। 1963 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लाया गया। नीलोखेरी प्रोजेक्ट मजदूर मंजिल बाय श्री एस के दे, 1965। फर्स्ट डीजी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर डॉक्टर बीपी पॉल। 1966 में हाईलीन वैरायटी प्रोग्राम लाई गई। इसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था। 1966-67 रिगार्डेड एज ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर। 1966-68 को फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर के नाम से भी FEEC करके भी प्रोग्राम लाया गया था। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1970, मिनीकिट प्रोग्राम 1971, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर 1971। Okay, 1973 started Agriculture Research Service ARS. Establishment of Agriculture Science Recruitment Board ASRB based on recommendation of G. Gadkar report 1 नवंबर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया 1973 में। स्टार्टेड मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP 1973-74। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम फॉर्मुलेटेड बाय डेनियल बेनर एंड बक्स्टर ऑफ इजराइल। फर्स्ट स्टार्टेड इन कैनल एरिया ऑफ राजस्थान, इन चंबल एरिया इन मध्य प्रदेश 1974। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1974, मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974। कृषि विज्ञान केंद्र बाय मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे फर्स्ट केवीके पौंडीचेरी में स्टैब्लिश किया गया 1974 में। अंत्योदय योजना स्टार्ट किया गया 1976 में। अशोक मेहता कमेटी ने प्रपोज किया 2 टायर पंचायती राज सिस्टम 1976 में। रिजर्व डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977 to 1978। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन फाइनेंशियल ईयर 1978 and extended throughout the India by 1980। It is also known as poverty eradication program, जो कि लाया गया अप्रैल 1978 में। ट्राइसेम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1973 में लाया गया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज 1982। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 12 जुलाई 1982, जिसका 12 जुलाई 2026 में 45th एस्टैब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है। नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 1983 में एक और प्रोग्राम आया था, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। 1985 इंदिरा आवास योजना लॉन्च किया गया था। 1995 ICR इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। 1996 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक एट न्यू दिल्ली। किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्टेड 1998। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999। इसमें कई सारे प्रोग्राम्स को इंक्लूड कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। देन इसको रीनेम किया गया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000। मई 2005 में स्टार्ट किया गया था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। 2005 से 2006 तक भारत निर्माण इज एन इंडियन बिजनेस प्लान फॉर क्रिएटिंग एंड ऑग्यूमेंटेटिंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन इरिगेशन रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना एंड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। नेशनल बैम्बू मिशन स्टार्ट किया गया था 2006-07 में। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इट इज अ वेरी क्रूशियल स्कीम which provide employment to rural household। 2006 में लाया गया था ये प्रोग्राम। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 7 अगस्त, ईयर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के द्वारा चलाई गई प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स। 1926 में स्टैब्लिश किया गया था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जो कि हेड किया जा रहा था लॉर्ड लिंथिंगो, एंड रिकमेंड किया गया था बाय सेटिंग अप इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू प्रमोट, गाइड एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर रिसर्च थ्रू आउट द इंडिया। 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था। 16 जुलाई 1929 को ICR ने सेटअप किया था एज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। मार्च 1946 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगिंदर सिंह इट वाज डिसाइडेड टू चेंज इंपीरियल इनटू इंडियन एंड नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1965 first DG of ICR was Dr. BP Paul. He initiated all coordinated research project ICRPs. 1966 ICR was made a fully autonomous organization on the recommendation of Agriculture Review Team. June 1972 Gajendra Gadkar Committee was constituted to review the recruitment and personal policy of ICR, and its institute submitted its report in 1973. 1973 Department of Agriculture Research and Education there were created in Ministry of Food and Agriculture.
Also, the Agriculture Research Service (ARS) was started, and the Agriculture Scientist Recruitment Board (ASRB) was established on 1 November 1973 as recommendation of the Gajendra Gadkar Committee. President of ICR, Union Minister of Agriculture. DG of ICR is also a secretary of DARE. जो ICR का DG होता है वो DARE का secretary भी होता है. Department of Agriculture, Research and Education was established in 1973. First presidents of ICR, Khan Bahadur, Sir Muhammad Habibullah. Indian Agriculture Research Institute (IARI) 1905. Agriculture Research Institute was established at Pusha, Bihar, under the viceroyalty of Lord Curzon. Earlier, it was West Bengal. Help of sum of rupees 9 lakh was donated by an American citizen, Henry Phipps. Hence, the main building known as Phipps Laboratory और नौलखा 1911 में इसको रीनेम कर दिया गया. 1911 में रीनेम किया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. 1923 में इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया गया ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेडशिप, जो कि डिप्लोमा ऑफर करता था. 1934 मेजर अर्थक्वेक आया एंड फ्लड, बाढ़ आ गई, डैमेज हो गया बिल्डिंग्स, जब ये पूषा बिहार में था. 1934 में बहुत ही सीवियर अर्थक्वेक और फ्लड आया था पूषा बिहार में, जहाँ इसकी बिल्डिंग्स जो है डैमेज हो गई थी. 1936 में IRI को स्टैब्लिश किया गया, शिफ्ट किया गया पूसा रोड में, न्यू दिल्ली में. 1936 B. Viswanath was first Indian director of IARI. 1947 name has been changed from Imperial Agriculture Research Institute to Indian Agriculture Research Institute. 1958 recognizes deemed university under UGC Act. 1956 PG school was established. So now moving to the complete rapid fire revision, Unit 2 and Unit 3. Part 1 origin of terms. This is from Unit 2. Latin word. Latin word के सारे words जो summarize किए हुए हैं, जिसके लास्ट में कल्चर या फिर स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं: एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्सटेंशन, सॉइल मार्केट, इवेल्युएशन, क्रेडिट, लेग्यूम, पल्स, सोसाइटी, सेल, इन विवो, इन विट्रो, फंजीसाइड, कम्युनिकेशन एंड कंपोस्ट. ऑल दोज आर लैटिन वर्ड्स. ग्रीक वर्ड जिसके लास्ट में नोमी, लॉजी या फिर साइंस हो, लाइक एग्रोनॉमी, बायोडायनामिक्स, नेमाटोड, पेडोलॉजी, डेफोलॉजी, एंजाइम, ग्राउंडनट, प्लास्टिड, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, आर्थ्रोपोडा, फाइटोपैथोलॉजी, मेटियोरोलॉजी, क्लाइमेट, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी. अरेबिक वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अरेबिक वर्ड्स में आते हैं मानसून, जो कि म्यूजियम से लिए गए हैं, और रबी, खरीफ और जैद, ये वर्ड्स जो है अरेबिक वर्ड है. फ्रेंच वर्ड में आएंगे टर्क गार्डनिंग, टॉर्कर, जिसका मतलब वर्गराइजेशन, एंटरप्रेन्योर, मैन्योर, ये सारे फ्रेंच वर्ड्स हैं. संस्कृत वर्ड शुगर कैन एंड कॉटन, करपासा, शुगर कैन, सरगरा, मिक्स्ड या फिर कॉम्बिनेशन. एक्सेप्शंस जो हैं कह सकते हैं पोमोलॉजी, जो कि लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है, सोशियोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड, और एग्रीकल्चर जो है लैटिन प्लस इंग्लिश वर्ड है, सीरियल्स जो है रोमन. Part 2 Ancient and Historical Milestone. 10,000 BC फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल फॉर हंटिंग वाज डॉग. सबसे पहला जो एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया शिकार करने के लिए, ये था डॉग. मेनली इसको ईरान एंड इसराइल में इसको रेगुलेट किया गया था. 1700 BC स्टार्टेड ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन. क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया वीट और बार्ले में. 2900 BC इन्वेंशन ऑफ प्लाउ एंड स्टार्ट ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग. 16th century AD पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया मेजर क्रॉप्स को इंडिया में, लाइक पोटैटो, टोमेटो, चिली, पपाया, ग्राउंडनट, टोबैको एंड रबर. 1845 AD आयरिश पोटैटो फेमाइन कॉज किया था लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि दैट इज कॉल्ड बाय फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस. 1875 AD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में. नेक्स्ट इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में 1944 में. 1899 to 1900 AD सीवियर फेमाइन नोन एज चंपकिया चपानी अकाल विक्रम संवत 1956. पार्ट 3 रूरल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले के प्रोजेक्ट्स. गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 में लाया गया था FL ब्राइनी के द्वारा, जो कि गुड़गांव हरियाणा में लाया गया था. फर्स्ट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन विलेज लेवल वर्कर कंसेप्ट. 1921 श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जो कि स्टार्ट किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वेस्ट बंगाल में, जिसका मेन फोकस था यूथ क्लब एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को लाना. 1921 ऑल्सो मार्थंडम प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय डॉक्टर स्पेंसर हैच अंडर YMCA in Tamil Nadu, based on self-help through mutual help. 1921 Sevagram project started by Mahatma Gandhi at Wardha, Maharashtra, focus on khadi and village cottage industry, institution and modern milestone. इंस्टीट्यूशन दिया था IRI को पुशा में स्टैब्लिश करने के लिए, जो कि बाद में शिफ्ट किया गया न्यू दिल्ली 1936 में, 1934 के अर्थक्वेक के बाद. 16 जुलाई 1929 स्टैब्लिशमेंट ऑफ ICR ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जिसको हेड किया जा रहा था बाय लॉर्ड लिंथिंगो के द्वारा. 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था, जिसका मेन कारण था ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथस पोलियम और आईसी. 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज 3 टायर सिस्टम इनॉग्रेट किया गया था नागौर में,
नागौर के राजस्थान में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था पंतनगर, जो कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी थी, बेस्ड ऑन यूएसए लैंड ग्रांट पैटर्न। 1965 में डॉक्टर डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ आईसीआर, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ आईसीआर डॉक्टर बीपी पॉल। 1966-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसका मेन फोकस था हाइल्डिंग वेराइटी एंड हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर। 1974 फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र को स्टैब्लिश किया गया पांडिचेरी में अंडर TNAU रिकमेंडेशन बाय मोहन सिंह मेहता कमेटी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट किया गया। रिसेंटली 2026 में 45वां स्टैब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है। 1998 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्टार्ट किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू।